Hello everyone, welcome to AptPlace Academy for Civil Services. This is a special video on Fortnite Current Affair, also known as FCA. So this is an initiative where I'll be discussing 10 important news that is relevant both for your prelims and mains examination. So this is Fortnite 2 for the month of August, right? And talking about the coverage of this entire initiatives, so the news is being covered from the Hindu, the Indian Express, and the most important news from the PIB, right? So this will help you to build a concept, especially for the prelims examination, supplementing with the mains paper. So these are the list of the topic for Fortnite 2. Basically, I'm not reading out the entire topic. You can just pause this video. You can read the entire topic, the 10 most important topics, right? And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe AptPlace Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Starting our the first topic of the news discussion, that is India chair UNSC debate on maritime security. So this is something which is very important and a pride moment for India that we are chairing the UNSC debate. And this is for 2 years. I think you must be aware. हमने इसको डेली न्यूज एडिटोरियल में भी जो न्यूज एनालिसिस है उसमें भी डिस्कस किया हुआ है. So the Prime Minister of India would chair a high open debate meeting. He actually held this meeting, right, enhancing the maritime cooperations, a case for international cooperation via video conferencing, right. और Prime Minister ने कहा है बेसिकली ये कोई ऐसी प्राइम मिनिस्टरशिप होगी इस बार इंडिया की जो कि प्रिसाइड करेगी यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट पे. इससे पहले कभी ऐसी नहीं हुई है. Now, क्या क्या फोकस होगी इस डिबेट की? सो द ओपन डिबेट फोकसेस अपॉन इफेक्टिवली काउंटर मैरीटाइम क्राइम, जो इनसिक्योरिटी है खास करके इस रीजन में, स्ट्रेंथनिंग द कोऑर्डिनेशन ऑन मैरीटाइम डोमेन. मैरीटाइम इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कंसिडरिंग द फैक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से चाइना की डोमिनेंस बढ़ी है. सो वी आर मोर कंसर्न अबाउट दिस रीजन एंड रशियन प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द सेशन. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ये कहा गया है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मीटिंग है दैट इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड बाय सेवरल अदर हेड्स, जो कि हो चुकी है ऑलरेडी. So this is a high level basically briefer by the UN system and key organizations. Discussions किन बातों पे हुई है? So the UN Security Council has discussed and passed resolutions on aspects of maritime security and maritime crime. However, they will also for the first time figure out कि किस तरह से maritime security is very important and we need to compare with a plan that is very holistic in manner, inclusive agenda, द हाई लेवल ओपन डिबेट. सो इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म होगी जहाँ पे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट्स को डिस्कस कर पाएंगे. एंड टॉकिंग अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स पेपर ऑल्सो, राइट. सो मेक श्योर यू हैव अ फोल्डर पॉइंट फॉर दिस मैरीटाइम सिक्योरिटी टॉपिक एज वेल. नाउ इंडिया के लिए इंडिया के पास अपनी विजन सागर है. दिस इज लाइक इन 2015 ओनली इंडिया हैज इनकैप्सुलेटेड दिस vision. So this is known as security and growth for all in the region, जहाँ पे prosperity के लिए एक equitable share दी जाती है हर एक countries को, right, which aims to focus on cooperative measures for sustainable use of oceans, provide framework for safe, secure and stable maritime domain. So this is a vision of India which is really appreciated on global platform also. इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स की बात करें जो इंडिया ने पहले ही लिए हुए हैं. सो एक पार्ट है सागर इनिशिएटिव्स की. सो दिस इलाबोरेटेड ऑन फर्दर इन 2019 और कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इसमें. 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी विच इंक्लूड मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशंस, ट्रेड कनेक्टिविटी और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. तो ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में लिए गए. नाउ आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की रिपोर्ट अभी आई है. उन्होंने कुछ बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स दिए हैं. सो आईपीसीसी हैज रिसेंटली रिलीज ए रिपोर्ट. आईपीसीसी की वर्किंग ग्रुप 1 ने ये रिपोर्ट दिया. ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि देयर वुड बी नियर फ्यूचर में काफ़ी ऐसे इम्पैक्ट होंगे ग्लोबल वार्मिंग के एंड देयर वुड बी मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर ऑल्सो. सम मोर फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट बताई गई है कि जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हमें सेट करना होगा. वी हैव टू बिकॉज ऑल द हीट वेव्स, ड्राउट्स, इंटेंस कंडीशंस, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज समवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ह्यूमन बीइंग, राइट. हमारे जिस तरह से
इन्वायरमेंटल के प्रति कार्बन इमिशन हो रही है, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट मोर प्रॉब्लम, राइट. इंडियन ओशन इज वार्मिंग विद अ हायर रेट. साइंटिस्ट ने कहा है इंडिया विल विटनेस एन इंक्रीज इन द हीट वेव. ऑलरेडी टेम्परेचर सारे स्टेट्स में इंडिया में इंक्रीज हुई है. दिस ईयर ओनली वी हैव सो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस देखी जा चुकी है. So the current overall global trend shows that increase in the annual mean precipitation would also be there. और अगर ग्लेशियर ऑफ हिंदू कुश की बात करें, हिंदू कुश हिमालयन रीजन की, दिस विल कीप श्रिंकनिंग ओवर द कवर एंड विल रिट्रीट टू हायर एल्टीट्यूड्स. Rise in sea level, definitely once glacier will melt, it will lead to the increase in the sea level. तो IPC की जो 6th assessment report है उसमें ये कहा गया this would lead to the rise in sea level leading to the frequent and severe coastal flooding. Right, we have a coastline of 7,517 kilometers. Right, अगर इंडिया के कुछ important cities की बात करें जो कि इस coastal line से connect होती है, that include चेन्नई, कोची, कोलकाता, Mumbai, Surat and Visakhapatnam, right? So these are the major port city or the city which is connected with this region, right? So we have to take care of these areas as well. Recommendations क्या क्या है IPCC के? उन्होंने कहा है कि we need to control the global warming by 1.5 डिग्री सेल्सियस. ऑलरेडी जो पेरिस क्लाइमेट चेंज की जो क्लॉजेज हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है. रिपोर्ट ने ये भी रेकमेंड किया है कि जो नेट जीरो की इमिशंस हैं वो 2050 तक सारे कंट्रीज़ को अचीव कर लेनी चाहिए. हर एक कंट्रीज़ ने अपने अपने डेडलाइन दिए हुए हैं. इंडिया ने कहा है दे वुड बी ऑल्सो एडहरिंग टू द इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट. एंड रिपोर्ट स्ट्रेस्ड ह्यूमन एक्टिविटीज काउजिंग द क्लाइमेट चेंज. नाउ नेशनल एडिबल ऑयल मिशन फॉर पाम ऑयल मिशन, जिसमें ऑयल पाम मिशन पे फोकस की गई है. So the Prime Minister recently announced that National Edible Oil for Palm Mission, and this is something that would boost the domestic oil productions, right? जो इंडिया में self sufficient cooking oil की ज़रूरत है वो इस मिशन से पूरी होगी. ये National Edible Missions जो है, oil mission जो है, इस बार की जो मिशन है that is dedicated towards oil palm, right? So do not get confused on edible oil and oil palm. Oil palm is a variant of edible oil, right? So addressing the virtual event, PM किसान स्कीम के टाइम में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डेडिकेटेड 11,000 करोड़ रुपीस दी जा रही है. एंड दिस इज इंडिया फर्स्ट बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टर्स. इंडिया इस वेजिटेबल ऑयल की इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता रहा है. नाउ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल की बात करें अगर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि फाइनेंशियल आउटले बनाई गई है 5 ईयर के प्रपोजल्स पे, और NMEO है दैट एम्स टू रिड्यूस द इम्पोर्ट. जो हमारी इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी है उसको कम की जाएगी और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाई जाएगी. सो एज ऑफ नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन 60%, इट विल बी रिड्यूस टू 45%. और जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है वो 18 मिलियन तक करने की बात कही गई है इस टारगेट में. इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट 55% ऑफ द ग्रोथ इन द ऑयल सीड्स, और खास करके जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारी डिपेंडेंस इम्पोर्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी. इट इज़ नॉट क्लियर वेदर दिस रिगार्ड्स टू हैव चेंज ऑन द फाइनल वर्जन ऑफ दिस मिशंस. नाउ थ्रू नेशनल एडिबल ऑयल मिशंस, यहाँ पे जो आउटले रखी गई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 11,000 करोड़ रुपीज़. तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस तरह के जो फिनेंशियल एड है दैट विल हेल्प टू गेट ऑल फैसिलिटीज़, क्वालिटी सीड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड इवन वी कैन प्रमोट द and produce oil farming and other oil seeds. And he said that northeastern states, Andaman and Nicobar की बात करें, that could promote the palm farming. So these region has potential to get a lot more palm farmings. Now central government launches Ujjwala 2.0 scheme. This is something which is very important and it has helped a lot more people in the rural areas. So प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है और ये बेसिकली एक्सटेंशन है 1.0 की. जो उज्ज्वला 1.0 थी उसकी एक्सटेंशन है ये. बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी. गवर्नमेंट ने कहा था कि इसको एक्सटेंड की जाएगी एंड 1 करोड़ एडिशनल LPG कनेक्शन वुड बी प्रोवाइडेड अंडर दिस LPG कनेक्शन दैट इज उज्ज्वला स्कीम 2.0, राइट. और स्कीम एम्स टू प्रोवाइड बिगेस्ट रिलीफ टू लैक ऑफ माइग्रेंट वर्कर एंड देयर फैमिली इन द कंट्री. नाउ ओनली सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड. पहले जो पेपर वर्क थी उसको कम कर दिया गया है. नई जो उज्ज्वला स्कीम है उसमें माइग्रेंट वर्कर अपने सेल्फ एड्रेस प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे. दैट वुड बी सेल्फ सफिशिएंट. देयर वुड बी नो मोर पेपर वर्क दैट इज रिक्वायर्ड. नाउ व्हाट इज उज्ज्वला 2.0? यहाँ पे बताई गई है जो डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन होगी, दे डू नॉट नीड टू हैव एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर दिस, राइट. एंड इट विल प्रोवाइड फर्स्ट रिफिल hot plate free of cost
टू द बेनिफिशियरी। जो फर्स्ट रिफिल होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके बाद वो सब्सिडाइज रेट पे परचेज कर पाएंगे। नाउ द एनरोलमेंट प्रोसीजर वुड रिक्वायर मिनिमम पेपर वर्क। Migrant will not only be required to submit ration card or address proof, right? जो वन उज्ज्वला वन थी दैट स्टार्टेड इन 2006, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। इट हैज़ मेड अ सब्सटैंशियल चेंज इन रूरल एरियाज। एलपीजी कनेक्शन में जितने भी बीपीएल फैमिलीज थे उनके लिए। सब्सिक्वेंटली द स्कीम एक्सपैंडेड ऑन 2018 और वुमेन बेनिफिशरीज को इंक्लूड किया गया। जो एसटी कम्युनिटीज़ थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर के लोग थे, दे वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस उज्ज्वला स्कीम। Now, common survey to count elephant and tiger. This is a good decision that government has taken, and it will ultimately help to save a lot money. So, Ministry of Environment ने decide किया है कि एक system create की जा रही है जहाँ पे common counting होगी for tiger and elephants, right? And tiger survey is usually held once in 4 years. और अगर बात करें एलिफेंट की, दिस इज हेल्ड इन एवरी 5 years. So this is important. इससे पहले हर 4 साल के डिफरेंस पे टाइगर की कैलकुलेशन की जाती थी, total population के, and every 5 year interval there was a counting of elephant, right? So ministry said कि जो population estimations हैं वो दोनों के लिए अब common की जा रही है। So tiger और elephant populations की बात करें तो according to the most recent 2018-19 survey there are almost 2,997 tigers in India. और अगर बात करें elephant की as of 2017, so we have 29,964 elephants. Now computations of tiger numbers की अगर बात करें, जो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है WII, which is located in देहरादून, इन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री की जो प्रपोजल है टाइगर एस्टिमेशंस की, दैट इज बेस्ड वेयर दैट इनिशियली दैट वर बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, बट अब उसको कैमरा साइट्स, इनडायरेक्ट एस्टिमेशंस मेथड्स, टाइगर नंबर्स को इस मेथडोलॉजी को यूज करके कंप्यूट करते हैं WII के ऑफिशियल्स। सेविंग कॉस्ट की अगर बात करें, डेफिनेटली जब दो चीज़ों की सर्वे एक में ऑक्यूपाई की जाएगी तो 90% ऑफ एलिफेंट्स की अगर बात करें या टाइगर्स की बात करें वो कॉमन हैबिटेट एरियाज में रहते हैं। और वंस द एस्टिमेशन मेथडोलॉजी आर स्टैंडर्डाइज, एक कॉमन सर्वे से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की कॉस्ट सेविंग होंगी, एंड दिस कॉस्ट सेविंग कैन हेल्प टू गेट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड्स फॉर द एनिमल इन द जू और इन द वाइल्ड लाइफ और इन द नेचुरल सेंचुरीज। Now, roadmap for Gati Shakti project. Government of India has taken advantages, and they are looking forward to increase the infrastructure project in the country. So this is the aim of the Prime Minister, which he announced on the Independence Day, that Gati Shakti project would be taken into full swing, right? So 75th इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि PM गति शक्ति मास्टर प्लान को इनरोल किया जा रहा है, जिसकी फोकस होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वाया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राइट? गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पहले ही अनाउंस किया हुआ है, जहाँ पे सोशियो और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, एंड गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 1,002 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर दिस। NIP was first announced in 2019, so this is not new. National Infrastructure Plan 2019 में ही अनाउंस कर दी गई थी। Now, गति शक्ति प्रोजेक्ट की बात करें, dedicated 100 lakh crore project would be developed. The entire aim is to have a holistic infrastructure, and infrastructure is very important for country like India because it has a lot more bottlenecks to the people who are working over there. So it aims to have easier connectivity between roads, rail and airways. तीनों जितने भी वेज हैं, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उनको अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एंड द पुश फॉर इंडस्ट्रियल लाइन वुड बी गवर्नमेंट एफर्ट टू सेट अप अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रमोट इकोनॉमिकल ग्रोथ। फोकस क्या क्या होगी इस प्रोजेक्ट की? डेफिनेटली द एंटायर फोकस इज टू ब्रिंग मोर प्राइवेट प्लेयर इनटू एक्शंस, राइट? गवर्नमेंट ने ये जो प्लान बनाया है इसमें लोकल मैन्युफैक्चर्स पे ध्यान दी जाएगी, कंप्लीट काउंटर पार्ट जो वर्ल्ड लेवल पे होंगे उसको compete करने की कोशिश की जाएगी, एंड देयर वुड बी अ लेवल दैट वुड बी enhanced in terms of infrastructure development. It will also raise possibilities of economic zones और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो अलग अलग लेवल पे रोड, पोर्ट्स, हब बनाने की बात कही है। और गति शक्ति की जो मास्टर प्लान है दैट विल प्रोवाइड मैन्युफैक्चर फास्टर एक्सेस टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। When we have good level of infrastructure, definitely it will create a more access to international market as well. Now, remission of export taxes on basically remission of duties and taxes on export product. So government has come up with this scheme to promote the export,
and this initiative will help to get India self-reliance also. So recently Center ने notified किया है guideline for the remission of duties and taxations, right? Import में incentives किस तरह से दी जा सकती है buyers को, sellers को, that is there in this guideline. So this would aim to boost export. Government ने announce किया है कि जो tax refund है वो दी जाएंगी लोगों को जो भी export के business से जुड़े हुए हैं, and there are almost 8,055 products that would be included. So government has set aside 12,454 crore rupees under the remission of duties and taxes on export scheme. क्या एडवांटेजेस होंगे इस तरह के स्कीम्स के? सो डेफिनेटली इट विल प्रमोट एक इंसेंटिव्स देगी, जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट बूस्ट करेगी कम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट, राइट? एंड ऑल टैक्सेस जो लेविट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट, इवन जो ग्राम पंचायत भी अलग अलग लेवल पे, पंचायत के लेवल पे टैक्सेस को लेविट करती है, वो सारी पैसे को रिफंड किया जाएगा उस सेलर्स को या जो भी ट्रेड कर रहे हैं. नाउ द रेट अंडर द RoDTEP, that scheme would be different sector 0.5%, 2.5% and 4.5%. तो अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव्स दी जाएगी. और टोटल अमाउंट जो है, टोटल आइटम्स जो इंक्लूडेड हैं वो 8,055. सो द स्कीम वुड टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021. तो इसको बेसिकली बैक डेट से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि सारे बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स को मिल पाए. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स की अगर बात करें तो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ होगी इसमें. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टाइम मैंने आपको बता दिया. एंड दिस इससे पहले अर्लियर गवर्नमेंट के पास मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स थे जो कि एक तरह से WTO की वायलेशंस थी, राइट? नाउ द सिस्टम वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कस्टम थ्रू सिंप्लीफाइड IT सिस्टम. गवर्नमेंट ने इसके लिए डेडिकेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाई हुई है जो कि CBIC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करी है, और सारे इंडिविजुअल को एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट दी जाएगी. नाउ इंडिया डिसाइडेड टू रेटिफाई किगाली एग्रीमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. नाउ कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो रेक्टिफाई करेंगे किगाली अमेंडमेंट को जो कि एक पार्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, एंड दिस विल हेल्प टू कंट्रोल द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द फेज मैनर. जितने भी HFCs थे, HFC से पहले CFCs को इंक्लूड किया गया था. नाउ आफ्टर द स्टडिंग ऑफ HFC इट वाज आल्सो फाइंड टू बी द पोटेंट गैस व्हिच इम्पैक्ट ओजोन लेयर, राइट? सो अडॉप्ट की गई थी मॉन्ट्रियल 2016 में. किगाली अमेंडमेंट जो है दैट वाज नेम्ड आफ्टर द रवांडा व्हिच इज अ सिटी कैपिटल ऑफ, जो किगाली है वो रवांडा की एक सिटी है जिस पे इसकी नाम रखी गई है. एंड इट एनेबल जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और सेट ऑफ केमिकल्स हैं दैट वुड बी देयर. Basically these chemical impact our planet, and this is a time that we need to control it, otherwise there would be lot of detrimental effects that can be happening. 2016 में एक अमेंडमेंट की गई थी जहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल एफर्ट्स लिए गए. HFCs को सेट ऑफ 19 गैसेस में रखा गया जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट है और पोटेंट थ्रेट है ओजोन लेयर्स के लिए. नाउ इट इज एस्टिमेटेड कि जो कंप्लीट फेज आउट ऑफ HFCs की दैट वुड प्रिवेंट 0.5 डिग्री सेल्सियस राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर by end of this century. जो लेटेस्ट IPCC रिपोर्ट है उसने भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है दैट हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और ये और ज़्यादा बढ़ सकती है 1.1 डिग्री सेल्सियस तक. सो इट इज़ क्रूशियल टू अचीव द टारगेट एंड रिस्ट्रेन फ्रॉम द इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर टू 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. ओजोन सेविंग प्रोविजंस की अगर बात करें 1899 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई थी तो इसकी डेडिकेटेड एम थी ओजोन को सेव करना, राइट? जितने भी CFC गैसेस थे उस समय ये पोटेंट थ्रेट हुआ करते थे, बट बाद में जब ओजोन लेयर की पोटेंशियल को देखा गया ना प्रोटोकॉल में, खास करके जो HFCs हैं खास करके इस जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई उसमें CFC के अलावे HFCs को भी इंक्लूड किया गया बिकॉज दे वर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग ओजोन लेयर, राइट? So it was found extremely potent for the global warming. तो जो किगाली की अमेंडमेंट थी that enabled Montreal Protocol to mandate the elimination phase out of the HFCs also. So CFC and HFC are the part of Montreal Protocols. Now, Zycov D vaccine for for the children who is above age of 12. This is achievement for India. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ किया है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट और इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड DNA बेस्ड वैक्सीन है. DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, राइट?
और ह्यूमन खास करके ऐसे बच्चे जो 12 साल के ऊपर हैं उनको ये एडमिनिस्टर की जाएगी। 3 डोज में इनको देने की बात की गई है। दिस इज अ 3 डोज वैक्सीन। द फर्स्ट डोज वुड बी गिवन और जो रिमेनिंग 2 डोज है वो 28 और 56 डेज के इंटरवल पे दिए जाएंगे। दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय द जाइडस कैडिला ग्रुप। This is the first DNA vaccines, right? That can be administered without needle, and it will minimize the change of reactions. फेज 3 के ट्रायल्स काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। 28,000 वॉलेंटियर को इसमें बनाया गया है पार्टिसिपेंट, और 66% ऑफ पीपल फाइंड टू बी बेसिकली एफिकेसी रेट देखी गई है। वैक्सीन के ट्रायल्स इंडिया में काफ़ी लार्जेस्ट नंबर पे रहीं। जो इम्यूनोजेंसिटी या फिर टॉलरेबिलिटी की बात करें, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। एंड बोथ फेज 2 फेज 3 के जो दोनों क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट थे उसको इंडिपेंडेंट डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ने भी अप्रूव किया। Now, Plastic Waste Management Amendment Rule 2021. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने खास करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं। दे वुड बी प्रोहिबिटिंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम जो लो यूटिलिटी और हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से में बेसिकली इन्वायरमेंटल के लिए डेक्रीमेंटल है। So ministry said कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है that would be completely banned because they are converting with the international law। हमारी अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट है, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट चेंज हो, इंटेंडेड नेशनल डिटरमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, उसको मिटिगेट करने के लिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करनी होगी, राइट। नाउ लिस्ट ऑफ आइटम दैट वुड बी बैंडेड, ये पूरे लिस्ट ऑफ आइटम है। यू कैन चेक द लिस्ट है, like forks, spoons, knives, tray, wrapping, packing. These are some of the items. 100 less microns जो भी आइटम होंगे वो भी बैंडेड होंगे अभी इंडिया में, राइट। सो कमिंग जुलाई नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो गिवन टाइम टू द बायर्स एंड सेलर्स सो दैट दे कैन कम विद एनी अल्टरनेटिव प्लान्स। प्लास्टिक पैकेजिंग की बात करें, दैट इज नॉट येट कवर्ड अंडर सिंगल आउट फेज प्लास्टिक आइटम्स। ड्राफ्ट की अगर बात करें, दिस इज द वे फॉरवर्ड विच कैन बी यूज्ड। प्लास्टिक अमेंडमेंट रूल 2016 में भी काफ़ी चेंजेस की गई थी, बट वी हैव नॉट अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस। तो करेंटली रूल प्रोहिबिट मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड कैरी बैग्स, राइट। जो प्लास्टिक ऐसे माइक्रोन जो 50 माइक्रोन से कम है वो अभी इंडिया में अलाउड नहीं है, दैट इज बैंडेड। सो देयर इज अ बैन ऑन द scratch using plastic materials, packing, selling of gutkhas, tobaccos and pan masala. So definitely they would look for any alternative, that is paper packing, that would be required. इंडियाज़ की अपनी कमिटमेंट की अगर बात करें, 4th यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में इंडिया ने कहा है कि दे हैव देयर कमिटमेंट कि दे वुड बी बैंडिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। और एक नेशनल लेवल पे टास्क फोर्स बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, दैट वुड कोऑर्डिनेट इन द एफर्ट्स टू एलिमिनेट द सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। और उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है उसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट की जाएगी। अब जो नई अमेंडमेंट आई है दैट वुड बी इफेक्टिवली वर्किंग फ्रॉम coming next year, July 2022. So this was all about our initiative for the FCA. We have a lot more other initiative that is aligned in the YouTube channel. You can watch daily news, editorial analysis. We have IS Gazetted magazine, monthly magazine that supplements your current affairs. We have PIB compilations, monthly policy review by PRS, Yojana Just. All these initiatives will help you to build a strong foundations and sail through this journey of civil services. So do check it out, subscribe to our channel. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.